ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮੈਗਨੀਫੀਸੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਟੀਚਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੋਥ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਗਰੋਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾਧਾ, ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੱਕ ਹੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਟਰਮ ਹੈ, ਔਰ ਗਰੋਥ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਗਰੋਥ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਹੈ। ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਟ, ਵੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਈਟ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਟ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਕਿੱਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਗੇਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ 4-5 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ। ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਫੀਅਰ, ਐਂਗਰ, ਲਵ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਨੋਰਮਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਗਰੋਥ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਗਰੋਥ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਮੈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੂਮ ਟੂ ਟੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੂਮ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨੋ ਪਰਸਨਸ ਆਰ ਅਲਾਈਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਬੁੱਲ੍ਹ ਨੇ, ਨੱਕ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲਸ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲੈਵਲ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਲੋ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਸਿੱਖਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਓ, ਜਲਦੀ ਸਿਖਾਓ। ਬਟ ਜੋ ਬੱਚਾ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਲੈਕ ਆਫ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਇਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰੇਟ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰੇਟ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰੇਟ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਲੋ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਆਫ ਪੈਟਰਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂ
है ना, ज़्यादा हो सकता है, स्लो या फास्ट हो सकता है, बट वो एक यूनीफॉर्म पैटर्न ਨੂੰ फॉलो करेगा। लाइक जिवें सब तो पहले थोड़ा बच्चे का की होंदा फिजिकल डिवेलपमेंट ही होंदा है, उस तो बाद वो इमोशनल डिवेलपमेंट, सोशल डिवेलपमेंट, है ना, अलग अलग डिवेलपमेंट होने शुरू हो जाते हैं। बट स्टार्टिंग दे विच की होंदा फिजिकल डिवेलपमेंट होंदा है। इस तरीके दे नाल जिहड़ा डिवेलपमेंट है वो यूनीफॉर्म पैटर्न ਨੂੰ फॉलो करता है हर इंसान दे विच। सब तो पहले फिजिकल डिवेलपमेंट होएगा, उस तो बाद हौली हौली मैंटल डिवेलपमेंट नाल दी नाल हुंदे जाणगे, इमोशनल डिवेलपमेंट हुंदा जाएगा एंड दैन सोशल डिवेलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, प्रिंसिपल जो डिवेलपमेंट है वो जर्नल टू स्पेसिफिक होएगा, यानी कि आम तो खास। लाइक जिवें आपां लैंगुएज डिवेलपमेंट दे विच गल करते हैं तो सब तो पहला बच्चा बैबलिंग करता है, साउंड्स करता है ना, फिर उसके बाद वन वर्ड बोलना शुरू करता है ना, यानी कि सौखे तो औखे वाल जाता है। यही आपां नूं प्रिंसिपल दसदा है, सौखे तो औखे वाल जाना, यानी कि जर्नल टू स्पैसिफिक। आई थिंक मैं सिंपल भाषा दे विच दस रही हूँ, तुहानूं समझ आ गया होना है। सब तो पहला गया हाँ जी, नैक्सट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होंदा है कि सारे डिवेलपमेंट नाल दी नाल चलणगे। फिजिकल डिवेलपमेंट होएगा, नाल ही उहदे मैंटल डिवेलपमेंट, हौली हौली जिवें बच्चा समाज से निकलेगा सोशल डिवेलपमेंट, इमोशनल डिवेलपमेंट होने शुरू हो जाएंगे। ये नहीं हो सकता भी तुसी फिजिकल डिवेलपमेंट हो गया जी, है ना, सो लैंगुएज डिवेलपमेंट हले शुरू ही नहीं होया। जबकि बच्चा जो छोटा होंदा है तो फिजिकल डिवेलपमेंट हो रहा होंदा है, नाल दी नाल ओहदी वो साउंड्स करने शुरू कर दिंदा, नाल ही तो लैंगुएज डिवेलपमेंट भी शुरू हो जाता है, मैंटल डिवेलपमेंट भी शुरू हो जाता है। उस चीज़ों को समझना शुरू कर दिंदा है, अपने ते पराए दे विच फर्क करना शुरू कर दिंदा है। इस तरीके दे नाल इह आपां नूं दसदा है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। नैक्सट है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट, यानी कि जो प्रिंसिपल हैगा डिवेलपमेंट है ना, स्पाइरल वर्सेस लीनियर डिवेलपमेंट, कदे भी लीनियर यानी कि एवें एक दिशा च नहीं होंदा, फिजिकल हो गया, मैंटल हो गया, लैंगुएज हो गया, स्टैप बाय स्टैप इस तरह नहीं होएगा, बट कि एक स्पाइरल तरीके दे नाल होंदा है ना। कभी डिवेलपमेंट का रेट कभी स्लो हो जाता है, किसी स्टेज पर आके तेज़ हो जाता है, तब डिवेलपमेंट एक स्पाइरल प्रोसैस है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोडिक्टिबिलिटी, प्रोडिक्ट का मतलब कि होंदा अनुमान लगाना, है ना, भविष्यवाणी करना एक हिसाब नाल। सो जो बच्चा छोटा होंदा है ना, तो उसदियां हरकतां देख के, उसकी इंटरस्ट देख के, उसदा एटीट्यूड देख के, परसनैलिटी देख के आपां थोड़ा जिहा अनुमान लगा सकते हैं भी बच्चा किस फील्ड दे विच वधिया कर सकता है। लाइक उन्होंने बॉल से नाल क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है ना छोटे होंदे तो, सो आप एक अंदाज़ा जिहा मोटा जिहा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद वो वधिया क्रिकेटर बने, है ना, या फिर अच्छे किसी गेम दे विच वधिया है, या फिर टीचिंग दे विच वधिया है, या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट दे विच वधिया है। सो इस तरीके दे नाल प्रिंसिपल ऑफ प्रोडिक्टिबिलिटी आपां नूं दसदा है कि आपां डिवेलपमेंट का अनुमान लगा सकते हैं। चलो जी, हुण आपां करदे हां क्वेश्चनस। फर्स्ट क्वेश्चन है डिवेलपमेंट इज़ अ नैवर एंडिंग प्रोसैस। डिवेलपमेंट कदे भी ना ख़त्म होने वाला प्रोसैस है, यानी कि चलता रहता है हमेशा। डिवेलपमेंट आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। दिस स्टेटमेंट इज़ रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल ऑफ डिवेलपमेंट। सो ये जी स्टेटमेंट है किहड़े डिवेलपमेंट किहड़े प्रिंसिपल दे नाल रिलेटेड है। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। हाँ जी, दसो जी कि रिलेटेड है। आई थिंक तुम समझ गए होवोगे, ये है अपने प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के रिलेटेड, है ना, जिमें कि आप डिस्कस कर चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब है डिवेलपमेंट हमेशा चलता रहता है और नैवर एंडिंग प्रोसैस आ। वूम टू टूम जाएगा, जो बच्चा माँ के पेट च होएगा उदों ही शुरू हो जाएगा, एंड वूम टू टूम। नैक्सट क्वेश्चन है दिस इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डिवेलपमेंट। आप काफ़ी सारे प्रिंसिपल ऑफ डिवेलपमेंट किते है ना, 8-10 इस वीडियो के किते,
ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੇ ਦਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ MCQs ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ, ਨਨ ਆਫ ਅਬਵ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ, ਜਦਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ। ਦ ਲੋ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਇਨਕਲੂਡਸ, यानी कि डिवेलपमेंट डायरैक्शन नाल रिलेटेड किहड़ा डिवेलपमेंट प्रिंसीपल है, ये मैं इस वीडियो दे विच नहीं करवाया, उस पुरानी वीडियो दे विच करवाया। चलो मैं इस दे विच भी थोड़ा जिहा दस देनी हाँ। सफैलोकॉर्डल ते प्रॉक्सिमल डिस्टल के बारे। सब तो पहले सफैलोकॉर्डल के बारे समझ लो। जो डिवेलपमेंट है वो हैड टू टो जाता है। सफैलोकॉर्डल दे विच है हैड टू टो, मीनस सब तो पहला हैड का विकास होएगा, यानी कि थोड़े सिर का, दैन उस तो बाद चैसट, आर्म्स है ना, लैग्स, दैन उस तो बाद फुट, पैरों का। इस तरीके दे नाल इस डायरैक्शन दे विच डिवेलपमेंट होंदी है। इनू कहते आपां सफैलोकॉर्डल, हैड टू टो। नैक्सट है प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल दे विच की हुंदा है, इस दे विच जिहड़ा डिवेलपमेंट सेंटर तो शुरू होकर आउटवर्ड जाएगा। लाइक जिमें मान लो हार्ट का विकास हो गया, दिल का, उस तो बाद उहदे नाल वाले जो पार्ट्स ने उन्हां दा विकास होना शुरू हो जाएगा। स्टमक का हो गया, स्टमक दे नाल वाले जिहड़े भी ऑर्गन ने है ना, उन्हां दा विकास होना शुरू हो जाएगा, यानी कि आउटवर्ड होएगा, सेंटर टू आउटवर्ड डायरैक्शन दे विच। सो हम तुहानूं समझ गया, आंसर भी पता चल गया होना। लॉ ऑफ डिवेलपमेंट डायरैक्शन रिलेटेड किहड़ा सफैलोकॉर्डल ते प्रॉक्सिमल डिस्टल। सो अपना आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरैक्ट अबाउट प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डिवेलपमेंट। आपां नूं नीचे कुछ 4 स्टेटमेंट दित्तियां होईयां, इहदे विच आपां इनकरैक्ट फाइंड आउट करनी है। प्रिंसिपल ऑफ डिवेलपमेंट के बारे किहड़ी गलत है। डिवेलपमेंट फॉलोज अ डेफिनेट एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न, यानी कि डिवेलपमेंट एक डेफिनेट तो प्रिडिक्टेबल पैटर्न फॉलो करता है, बिल्कुल सही है ना। एक फ्लो दे विच चलता है, एक यूनीफॉर्म पैटर्न फॉलो करता है, ये भी गल अपन पता है। प्रिडिक्टेबल भी हैगा, भविष्यवाणी कर सकते आप। ऑल इंडिविजुअल्स आर सिमिलर इन देयर डिवेलपमेंट। देखो जी आ गलत हो गया है ना, आपने पढ़िया सी भी सारे इंडिविजुअल्स अलग अलग ने, इंडिविजुअल डिफरेंसिस पाए जाते हैं। सो ये लग रही आंसर। नैक्सट पढ़ते हैं, डिवेलपमेंट इज़ प्रोडक्ट ऑफ हैरीडिटी एंड इन्वायरमेंट। बिल्कुल सही है, डिवेलपमेंट जो होंगे ना हैरीडिटी तो इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट होंगे। एक बच्चे का डिवेलपमेंट निर्भर करता उसकी हैरीडिटी ते। हैरीडिटी की होंगी है, माँ बाप तो मिले हुए गुण, आइज़ ऑफ कलर है ना, इंटैलीजेंस लैवल, परसनैलिटी, ये सब चीज़ा हैरीडिटी तो मिलिया हुई ने। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो जिस इन्वायरमेंट के आप रहने हो उसके अकॉर्डिंग अपना विकास होएगा। सो डिवेलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हैरीडिटी एंड इन्वायरमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन थोड़ा जरूर पेपर से देखने मिलेगी, सो इन्हों पल्ले बन लियो। डिवेलपमेंट वर्क्स ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। हाँ जी, ये भी आप पढ़िया प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। सारे डिवेलपमेंट नाल दी नाल चलते हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं है। सो आंसर पता चल गया होना। गलत ऑप्शन दसनी से आप ये ऑल इंडिविजुअल्स आर सिमिलर इन देयर डिवेलपमेंट, ये गलत है, इनकरैक्ट ही लभना से आप। नैक्सट है, नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर बिकॉज। प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ तो डिवेलपमेंट की अपन नॉलेज क्यों होनी चाहिए है। दिस नॉलेज वुड हेल्प द टीचर टू सैग्रीगेट द चिल्ड्रन। सैग्रीगेट द चिल्ड्रन मतलब कि बच्चों को अलग अलग करने वास्ते, नलायक हुशियार दे विच वंडण वास्ते अपन हेल्प करेगा। बिल्कुल गलत है।
ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਜੋ ਫਾਸਟ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਲੋ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਿਲ ਰੋਂਗ। द टीचर वुड बी एबल टू क्रिएट अ गुड इम्प्रैशन, ताकि टीचर अपना अच्छा इंप्रेशन बना सके, खुद अच्छा बन सके, है ना। दिस नॉलेज वुड हेल्प इन टीचर टू प्रोवाइड द चिल्ड्रन विद एप्रोप्रिएट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, ताकि टीचर बच्चे नूं सही लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ सिक्ख्या दे वध तो वध सीखण दे वध तो वध मौके प्रदान कर सके। दिस वुड मेक चाइल्ड डिवेलपमेंट अ पॉपुलर कोर्स, ताकि चाइल्ड डिवेलपमेंट एक पॉपुलर कोर्स बन जाए। गलत जी। सो इसका राइट आंसर है दिस नॉलेज वुड हेल्प द टीचर टू प्रोवाइड द चिल्ड्रन विद एप्रोप्रिएट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, ताकि जोड़े टीचर हैं वो बच्चे नूं सही लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवा सके, ठीक है। बच्चे नूं सीखण दा वध तो वध मौका दे सके। अगर कोई बच्चा स्लो सीख रहा है तो उसनूं एक चंगी एजुकेशन दे सके, एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा सके, उसकी हेल्प कर सके सीखण दे विच, ना कि उन्होंने सैग्रीगेट करे, है ना, उहदे विच भेदभाव करे या उन्होंने नलैक हुशियार का दर्जा देवे, ठीक है। सो ये ऑप्शन अपने को बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द थ्योरी ऑफ डिवेलपमेंट। डिवेलपमेंट की काफ़ी सारी थ्योरीज ने, है ना, प्रिंसिपल ऑफ डिवेलपमेंट ने रिलेटेड ने। सो इन्हां दे विच किहड़ी नहीं है, नॉट पूछा गया। थ्योरी ऑफ कंडीशन रिफ्लैक्स, थ्योरी ऑफ continuous growth, theory of interrelationship and theory of uniform pattern। so ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ right option है theory of condition reflex। ਇਹ theory ना behaviorism ਦੇ ਨਾਲ related ਆ, behaviorism ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ option ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ, not ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, not ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ right option ਹੋ ਜਾਏਗੀ। out of following which is not correct principle इन कंटैक्स टू ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट। ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट जो तुसी प्रिंसिपल पढ़ चुके हो, सो हुण दसो इन्हां दे विचों किहड़ा नहीं है, ठीक है, किहड़ा प्रिंसिपल नहीं है। फुट टू हैड, यानी कि पैरों तो सिर वाल जाऊगा विकास, बिल्कुल नहीं, है ना। जबकि मैं कि दस्सिया सी हैड टू टो, हैड टू फुट वाल जाऊगा। सो जी आपां नूं पहले ही पता चल गया आंसर है ये वाला, क्योंकि नॉट पूछा है हमें, नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है। नियर टू डिस्टेंस जाएगा, बिल्कुल सही है। सेंटर टू, नेड़े तो दूर वाल जाएगा। पहले हार्ट, मान लो हार्ट का विकास हो रहा है तो उसके नाल वाले अंगां का भी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हैड टू हो जाएगा, बिल्कुल सही है। इंट्रैक्शन ऑफ हैरिडिटी एनवायरनमेंट, अपन पता डिवेलपमेंट की होंदा है, हैरिडिटी ते एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट। इन्हां दे विचों प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट किहड़े किहड़े ने। प्रिंसिपल नैवर फॉलोज द पैटर्न, डिवेलपमेंट कभी पैटर्न फॉलो नहीं करता, बिल्कुल गलत है। जबकि डिवेलपमेंट इज फॉलोज द यूनीफॉर्म पैटर्न, यूनीफॉर्म पैटर्न फॉलो करता है। लाइक जिमें फिजिकल डिवेलपमेंट हो गया, उस बाद लैंग्वेज, है ना, सॉरी मैंटल डिवेलपमेंट, लैंग्वेज डिवेलपमेंट, सोशल डिवेलपमेंट, से एक यूनीफॉर्म पैटर्न फॉलो करता है। चलो जी, हाँ तो गलत हो गया। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बिल्कुल सही है, पढ़े हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन भी पढ़ चुके हैं। डिवेलपमेंट प्रोसीज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ये भी पढ़ चुके हैं। तो अपने को ऑप्शन किहड़े ठीक हो गया, सेकंड, थर्ड ते फोर्थ आ रही। फर्स्ट ऑप्शन सेकंड, थर्ड ते फोर्थ, ये वाला आंसर अपना बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द सीक्वेंस इज एप्रोप्रिएट व्हेन डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरल एरियाज ऑफ द बॉडी। सेंटर टू आउटवर्ड डायरैक्शन दे विच जाए, सेंटर टू आउटवर्ड डायरैक्शन दे विच जाए तो आप की कहांगे, किहड़ा सीक्वेंस है। सिफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमल डिस्टल, लोकोमोटर या फिर बायलैटरल। देखो जो डायरैक्शन तो आप दो ही पढ़ी है, सिफेलोकॉर्डल पढ़े या प्रॉक्सिमल डिस्टल, तो थर्ड ते फोर्थ ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती, है ना, ये तो होगी गलत। फर्स्ट ते सैकेंड जो दसो सी। सिफेलोकॉर्डल मैं दसा सी
ਹੈਡ ਟੂ ਟੋ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੋ ਡਿਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਟੂ ਆਊਟਵਰਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਟੂ ਪੈਰੀਫੇਰੀਅਲ। So answer is option number second. We all differ in terms of intelligence, motivation, interest, etc. The principle refers to statement ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲੈਵਲ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ? ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਹੈਰੀਡਿਟੀ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ। ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਸੀਕੁਐਂਸ ਇਜ਼ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਵੈਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੀਡਸ ਫਰੋਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਾ ਡਿਸਟਲ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਧਰ ਉੱਡ ਗਿਆ? Development signifies the movement from whole to parts and from parts to whole development, the ability of a child to form uniform specific movement. क्वेश्चन च गड़बड़ है, इनकम्पलीट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ that defines the development begins at conception and ends with the life। ਕਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਐਂਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੂਮ ਟੂ ਟੂਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਗਰੋਥ, ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਆਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਰम्स ऑफ इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, ये भी क्वेश्चन हो चुका है। इंडिविजुअल डिफरेंसिस इज आंसर सी। सो ये ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਟਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਚੈਪਟਰ 2